ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ x+4 = 0, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ y+3 = 0, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x² + 2x + 3 = 0, y² + 4y + 4 = 0। ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ x ਅਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ x+4 = 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ x ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ x² + 2x + 3 = 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ x ਇਜ਼ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ, ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ x ਦੀ ਉਹ ਹੈ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 2x² + 5x + 3 = 0, ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ x ਦੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ x ਇਜ਼ 3। ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵੀ ਹੈਗੀ, 2 ਵੀ ਹੈਗੀ, 3 ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਅਗਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਅਗਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਅੱਗੇ 4 ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ x ਨੈਵਰ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ px ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਵਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, x ਦੀ ਪਾਵਰ 5/2, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ px ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ px ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ px ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਤੀ x² + 3x + 4 = 0। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ y = x² + 3x + 4। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ x ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, x ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ 0 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ x that make
ਦਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 0 x ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0 ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। एग्जाम्पल करते हैं आप। एग्जाम्पल एक्स स्केयर -4x -4 जी। तो एक्स की किहड़ी वैल्यू भरी आप आंसर 0 बन जाए। तो सब तो पहले एक्स अपने वन पुट करके देखिए। तो एक्स में पहले आप 1 ने 2 पुट करते। सब तो पहले एक्स में 2 पुट करते हैं। जो एक्स में 2 पुट करांगे तो इतने करो 2 स्केयर -4 × 2 -4 तो कितना आ गया? इतने आ गया 4, इतने आ गया -8, इतने आ गया 4। 0 नहीं बनया। फिर अपन ने की पुट करिया -2 भरिया। एक्स में दूजी बार अपने -2 भरिया था। कितना आंसर आ जाएगा इतने? -2 स्केयर -4 × -2 -4 = 0 करना है अपन। 0 होना चाहिए इक्वल है। तो आ गया 4, इतने आ गया +8 -4। तो ये भी 0 नहीं आया। ये किसी भी एक्स की वैल्यूज नाल ये 0 नहीं आ रहा। तो इसकी ना तो x = 2 इसकी 0 है, ना ही x - 2 इसकी 0 है। तो आप एक और इक्वेशन लिख दें। अपने लिख लिया एक्स स्केयर -4x + 4 = 0। यह इक्वेशन लिख ली। तो आपने ये जी इक्वेशन लिख ली दोबारा पॉलीनोमियल। तो ये देखो पहला अपने x में 2 भरिया। तो 2 स्केयर -4 × 2 + 4 = देखते कितना होता है? इतने 4, इतने -8, इतने आ गया 4। हूँ 4 - 8 + 4 = 0 बन गया। देखो एक्स में अपने भरिया 2 तो जो एक्स स्केयर -4x + 4 से वो बन गया 0। इसका मतलब x = 2 इज़ 0 ऑफ एक्स स्केयर -4x + 4। तो जो x = 2 है वो इस इक्वेशन की 0 है, क्योंकि x = 2 भर के आंसर 0 बन जाता है। तो 0 का मीनिंग यही होंगे किसी भी पॉलीनोमियल से जो 0 कैलकुलेट करनी है। तो मतलब आपने की कैलकुलेट करना है? एक्स दी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनिया ने भी जी वो एक्स की वैल्यूज़ है की आऊगी जी आप पुट करिए तो आंसर है जो 0 बन जाए। इतने एक्स दी जी पॉलीनोमियल के 0 बारे क्लीयर होना चाहिए इतों के। अगर कोई भी डाउट है तो मैं दस दो तो आप दोबारा कर लाँगे। हूँ अगे तो जोमैट्रिकल मीनिंग भी होना चाहिए। 0 असल होंगे की नहीं, तो अपने कल भी वैल्यूज़ होंगे जो इक्वेशन के भरते हैं आप, तो उन्होंने आंसर है इक्वेशन का पूरी वो 0 बन जाता है। पर असल के 0s की ने? असल के 0s की गल करते हैं आप। हूँ मतलब अपने एक इक्वेशन लिख ली y = x + 4। यह अपने इक्वेशन लिख ली। हूँ आप इसका ग्राफ बनाने। जो इसका ग्राफ बनावे आप ग्राफ इतने 1 2 3 4 5 इधरले पासे -1 -2 -3 -4। इस साइड 1 2 3 एंड 4 -1 -2 -3 एंड -4। इस तरह अपनी ग्राफ बनाने। हूँ सब तो पहले आप ये देखना भी ये ग्राफ है कितों की लंघूगा। हूँ जो आप भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने का मैथड की होंगे? जिहड़ा यही लाइन होंगी है नीचे वाली, ये होंगी है एक्स एक्सिस। जिहड़ा यह साइड होंगी नीचे लाइन होंगी है एक्स एक्सिस होंगी है। जी आ उपर वाली लाइन होंगी है इनू कहा जाता है वाई एक्सिस। इनू कहा जाता है वाई एक्सिस। सो सब तो पहले आपको देखना पड़ेगा जी ये इक्वेशन है y = x + 4 ये एक्स एक्सिस को कितने कट कर रही है। तो जो भी चैक करना है इसनों ये एक्स एक्सिस को कितने कट कर रही है तो ये भर दो y = 0। जो y 0 भरता अपने 0 = x + 4। जो 4 है इधर आके माइनस हो x = -4। तो एक्स एक्सिस को कितने कट करूँगी ये -4 के इतने कट करूँगी। तो इस पॉइंट का नाम की है? देखो इतने y 0 है, y 0 है तो जो x है वो -4 है। तो जो इस पॉइंट का नाम है -4 0। तो सैकेंड तो आपने फिर इन्हू चैक करना भी ये वाई एक्सिस को कितने कट करूँगी। जो वाई एक्सिस को चैक करना हो तो उत्थे आप एक्स 0 भरांगे। एक्स 0 भर दो इतने y = 0 + 4 y आ गया 4। तो y को इतने कट कर रही है। हूँ इतने जो एक्स है तो 0 है, y कितना है 4। तो इसका नाम हो गया 0 4। तो इन्होंने मिला दो। तो जोड़ा ये अपनी लाइन ड्रा करी सी वो इस पॉइंट विचों दी लंघ रही है। जी आह लाइन अपने ड्रा करी सी y = x + 4 वो एक्स एक्सिस को -4 0 पॉइंट पर कट रही है। तो जोड़ा वाई एक्सिस है उसमें कट रही है 0 4 पर। असल दे विच जिस पॉइंट ते यह लाइन एक्स एक्सिस को कटती होंगी है वही 0s होंगे नहीं। जिस पॉइंट ते यह लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है वही इसकी की है 0s। तो 0s का जोमैट्रिकल जो मीनिंग वो की है भी कोई भी पॉलीनोमियल जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है
उस पॉइंट ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ y = x+4 ਲਾਈਨ ਸੀ, ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ -4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀ ਹੈ, -4 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, -4 ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ x² - 4x + 4, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਸੀ ਕੀ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ, x = 2 ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1। ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1। ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, 1। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 3। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 3 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ y = x+4 ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ 1 ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ 1 ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ x² ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੀ x² - 4x+4, ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 2 ਆਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ x ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। क्वेश्चन आ गया पहला, देखो फस्ट क्वेश्चन देखो, फस्ट ग्राफ जी ये लाइन है उपरली लाइन, आह लाइन ये एक्स एक्सिस में कट ही नहीं कर रही। देखो एक्स एक्सिस आ सीगा नीचे, आह एक्स एक्सिस है पर ये कट ही नहीं कर रही इसनूं, आह एक्स एक्सिस है पर उपरली लाइन उपर ही रह रही है, इसका मतलब ये कट नहीं कर रही। जे एक्स एक्सिस में कट ही नहीं कर रही तो इसकी जीरोज़ कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब इसकी कोई भी जीरो नहीं हैगी, नो जीरो, ये कोई भी जीरो नहीं है पहले क्वेश्चन, क्योंकि एक्स एक्सिस में कट ही नहीं कर रहे। दूसरा देखो एक्स एक्सिस में कितने बार कट रहा है, सिर्फ एक बार कट रहा है, वो भी इस पॉइंट पर, तो इसकी जीरोज़ कितनी हो गई, 1 हो गई। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, देखो एक्स एक्सिस में एक बार तो इतने कट कर गया, एक बार इतने कट कर गया और लंघ गया, फिर नीचों की दोबारा फिर इतने कट कर गया, 3 बार एक्स एक्सिस में कट कर गया। ये तो मतलब इसकी जीरोज़ कितनी हो गई, 3 जीरोज़ हो गई इसकी। नैक्सट क्वेश्चन है, नैक्सट देखो एक बार इतने कट कर गया, दूसरी बार इतने कट कर गया, ये मतलब 2 बार कट कर गया, तो टोटल जीरोज़ इसलिए कितनी हो सकती हैं, 2 जीरोज़ हो गई। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये एक बार इतने कट कर गया, एक बार इतने कट कर गया, फिर दोबारा इतने कट कर गया। देखो ध्यान रखना है, सिर्फ इस लाइन में ही चेक करना है अपने, जी इस तरह जा रही है होरीजोनटल लाइन है, वर्टिकल लाइन जिन्नी बार मर्जी कट्टी जाए वह अपन कोई इशू नहीं है। सिर्फ अपने एक्स एक्सिस चेक करना है भी एक्स एक्सिस में कितने बार कट कर रही है, सिर्फ तो सिर्फ एक्स एक्सिस चेक करना है, दूसरा एक्सिस नहीं देखना है। तो अपने सिर्फ एक्स देखा, देखो इतने एक्स में कट कर रहा सीगा, इतने एक्स में कट कर रहा सीगा, इतने भी एक्स में कट कर रहा सी, फिर इतने एक्स में कट कर रहा, तो इतने एक्स में कट कर रहे, तो कितने पॉइंट कट कर गई, 4 दे, तो इसलिए कितनी जीरोज़ हो गई, 4, इसलिए जीरोज़ 4 हो गया। नैक्सट देखो एक बार इतने कट कर गया, 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 तो कितने बार कट कर गया, 3, 3 बार, तो इतनी जीरोज़ हो गई, 3 जीरोज़। तो अपना फस्ट पार्ट सीगा, बिल्कुल ईजी सीगा, सिर्फ अपने ग्राफ में चेक करके क्वेश्चन दसने सीगे भी कितने बार ही एक्स एक्सिस में कट कर रही है, तो जिन्नी बार एक्स में कट करूगी उन्नियां ही इसलिए जीरोज़ हो जाएगी। मैंने लगता समझ आ जानी चाहिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन सीगा। तो जो कोई भी इस डाउट है तो मैंने दस दो, फिर आप दोबारा क्लीयर कर लाँगे। तो इतना क्लीयर होना चाहिए भी जीरोज़ होंदियां की ने, तो जीरोज़ का जो नंबर है भी किसी भी पॉलीनोमियल के कितनी जीरोज़ हो सकते हैं। तो आप ग्राफ तो देख के दस सकते हैं भी कोई भी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में कितने बार कट कर रहा है, जिन्नी बार वो एक्स एक्सिस में कट करूँगा उन्नियां ही उसदियां जीरोज़ हो जाएगी, उन्नियां ही की हो जाएगी उसदियां जीरोज़ हो जाएगी। जिवें आप अलग तो कर लेने, एक मतलब अपने ग्राफ बनाता, तो एक मैंने ग्राफ ड्रा करता इस तरह का, तो ये लिखो कितने बार कट कर रहे, एक बार इतने, दूजी बार इतने, तीजी बार उरे नेड़े जे, फिर उरे चौथी बार, उरे पंजवीं बार, तो कितनी जीरोज़ हो गई इसदियां 5, कितनी जीरोज़ हो गई 5 हो गई। नैक्सट एक होर क्वेश्चन कर लेने का, जो मैं हाँ ड्रा करता, तो देखो इस ग्राफ के चेक करो कि यह एक्स एक्सिस में टच कर रहा है, यह एक्स एक्सिस है, यह है वाई एक्सिस, तो देखो ये एक्स एक्सिस में टच ही नहीं कर रहा, तो कोई भी जीरो नहीं हैगी, नो जीरोज़। मैंने ग्राफ ड्रा करता इस तरह का, तो ये एक्स एक्सिस में एक बार इतने टच कर रहे, कट कर रहे, दूजी बार इतने कट कर रहे, तो इसमें कितनी जीरोज़ हो गई, 2 जीरोज़।
कोई भी डाउट है तो दसो हुण इहदे विच नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करनी आ गई नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करनी आ जानी चीज़ां ने नैक्सट क्वेश्चन कर लिया आप नैक्सट चीज़ ये आऊगा हुण आप एक जनरल पॉलीनोमियल मन के चलते हैं जनरल पॉलीनोमियल अपने को है मतलब एक पॉलीनोमियल है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आपने ये पॉलीनोमियल लिख ली आप करना हुण रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਵੇਂ ए बी ਤੇ सी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ए बी सी ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ c ਹੁੰਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ a x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ b ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ c ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ a b c ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ पावर ऑफ एक्स कितनी है 2 तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होणगियां नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होणगियां 2 होणगियां नंबर ऑफ जीरोज़ तो 2 जीरोज़ ने तो आप उन्होंने सम भी कर सकते हैं उन्होंने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम दो चीज़ां आ गई अपने को 2 जीरोज़ आ गई 2 वैल्यूज़ आ गई एक्स दियाँ इसका मतलब की कर सकते हैं आप उन्होंने सम भी कर सकते हैं उन्होंने ऐड भी कर सकते हैं उन्होंने माइनस भी कर सकते हैं उन्होंने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप उन्होंने सम कर दिए की कर दिए उन्होंने सम कर दिए सम ऑफ जीरोज़ तो सम ऑफ जीरोज़ जो कैलकुलेट करांगे तो वह आऊगा माइनस बी अपॉन ए याद रखना है ये सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए तो जो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की आऊगा सी अपॉन ए ये रिलेशन है जीरोज़ तो ए बी सी ये रिलेशन है जीरोज़ के जो कोफिशिएंट ने ए बी सी उन्होंने अगर सम ऑफ जीरोज़ कर दिए तो माइनस बी अपॉन ए आऊगा अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कर दिए सी अपॉन ए आऊगा ए बी सी की ने जो एक्स स्केयर नाल लग्या होंदा जो एक्स स्केयर नाल लग्या होंदा वो ए होंदा जो एक्स नाल लग्या होंदा वो बी होंदा जो तीजे नंबर पर होंदा वो सी होंदा ठीक है तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आप एग्जाम्पल करते हैं मान लो मैंने कोई भी इक्वेशन लिखती 3x स्केयर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ये लिखती हूँ ये आप सम ऑफ जीरोज़ कैलकुलेट करनियाँ ने कैलकुलेट करनियाँ ने सम ऑफ जीरोज़ फार्मूला तो अपने क्या है ऊपर माइनस बी अपॉन ए तो हूँ आपको पता है जोड़ा एक्स स्केयर में लग्या होंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर होंगे ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स होंगे बी तो जो तीजे नंबर पर होंगे कॉन्सटेंट होंगे सी जोड़ा कॉन्सटेंट होंगे सी हूँ तीनों चीज़ां देखनियां ने आपां ने हूँ अपने ये जी इक्वेशन है वो एक्स स्केयर नाल की लग्या होया 3 तो ए कितना हो गया 3 हो गया फिर अगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है अपनी इक्वेशन एक्स नाल की लग्या है 2 तो की हो गया बी हो गया जो अपनी इक्वेशन कॉन्सटेंट है तीजे नंबर पर 5 तो सी कितना हो गया 5 ए बी सी फाइंड हो गया अपन तो हूँ आप सम ऑफ जीरोज़ कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ जीरोज़ की जगह अपन की करना है ए बी की वैल्यू भरनी है माइनस बी अपने को है 2 एंड ए अपने को है 3 तो कितना आ गया -2 अपॉन 3 ये आ गया सम ऑफ जीरोज़ ये आ गया सम ऑफ जीरोज़ तो सम ऑफ जीरोज़ इस इक्वेशन आ गया -2/3 अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैलकुलेट करना हो इस कर लेने आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला सी अपॉन ए होंगे हूँ अपनी इक्वेशन सी 5 है एंड जो ए है वो 3 है सी अपॉन ए 5 अपॉन 3 ये सीगा रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड अपना जोड़े कोफिशिएंट ने एक्स स्केयर एक्स तो कॉन्सटेंट पीरियड उन्होंने रिलेशन सीगा हूँ इन्हों तो भाई जो अपन प्रोडक्ट तो सम ऑफ जीरोज़ पता हो तो ना तो इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं आप तो जनरल इक्वेशन लिखनी हो तो की आता होंगे ये बात करेंगे आप एक बार यही चीज़ समझो पहला यही चीज़ इन्नी क्लीयर है सम ऑफ जीरोज़ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्लीयर है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्लीयर होना चाहिए कोई भी इक्वेशन अपन दे रखी हो कोई भी इक्वेशन दे रखी हो उस जोड़े सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी अपॉन ए होंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी अपॉन ए होंगे तो अपनी एक एग्जाम्पल कर ली 3x स्केयर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स 0 ये सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला लगाया माइनस बी अपॉन ए तो -2/3 तो -2/3 आंसर आ गया सम ऑफ जीरोज़ फिर अपने लगाया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला सी अपॉन ए तो सी अपॉन ए करके आ गया 5/3 ये सीगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एंड सम ऑफ जीरोज़ सर क्वेश्चन करके दे दिया देखो ये है अपने फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन आप पहले जीरोज़ भी फाइंड भी करनी ने सो मैं जीरोज़ फाइंड करनी भी सिखा थोड़ा किसी भी इक्वेशन दी जीरोज़ फाइंड करना तरीका की है सपोज कर लो आप आह इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्केयर
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन लिख ली। हुण आपां इहदियां जीरोज़ फाइंड करोगे। सो जीरोज़ फाइंड करन दा तरीका की है, सब तो पहला देखो इत्थे एक्स स्केयर नाल कुछ भी नहीं लग्या होया। जो एक्स स्केयर नाल कुछ भी नहीं लग्या होया इत्थे, तो सिर्फ लास्ट ते चेक करो। लास्ट ते की है 1। तो अपने एम दे दो नंबर फाइंड करने ने। वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स such that their product is 1 and plus or minus is 1 or 2। जो लास्ट ते लिखा होंदा है वो प्रोडक्ट करके आना चाहिए उदों नंबर्स का। जो विचकार एक्स नाल लग्या 2 वो प्लस या माइनस करके होना चाहिए। तो मेरे दो नंबर फाइंड करते हैं आप कि दो नंबर हो सकते हैं। तो हम देखो वो मेरे दो नंबर कि 1 एंड 1। देखो इन्हों जो मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 आ जाता है, जे ऐड कर दिए तो 2 आ जाता है। विचाले वाला नंबर आप जो विचाले वाला नंबर है आह ये तो आप ऐड या माइनस करके बनाना होंगे, सबट्रैक्ट या माइनस करके सबट्रैक्ट करके या ऐड करके, ठीक है। जो लास्ट वाला नंबर है ये आप मल्टीप्लाई करके बनाना होंगे। तो हूँ ये दो नंबर 1 ते 1 मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला नंबर बढ़ जाऊगा 1, जिन्होंने ऐड कर देंगे तो 1 बन जाऊगा, ठीक है। दो नंबर लभ गए तो इन्होंने लगा दो एक्स, ये भी एक्स लग गया, ये भी एक्स लग गया। विचाले प्लस करना है क्योंकि प्लस करके 2 बनूगा। हम जो विचाले वाला नंबर से मिडल टर्म को आप स्प्लिट करता 1 + 1 करता, तो मिडल टर्म की जगह दोनों लिखे गए। तो जी तीजे नंबर के टर्म से 1 वो लिखता, पहले नंबर वाली भी आप एम लिखता, ठीक है। इस मैथड को कहा जाता है मिडल टर्म स्प्लिट मैथड। मिडल टर्म स्प्लिट मैथड जी मिडल टर्म से 2x उन्होंने स्प्लिट करता 1x + 1x जी फर्स्ट नंबर पर एक्स स्केयर लिखा उन्होंने भी सेम लिख लिया, जो लास्ट से 1 लिखा उन्होंने भी सेम लिख लिया। तो हूँ चेक करो, देखो फर्स्ट वाला जो एक्स स्केयर है इन x × x लिख सकते हैं, प्लस जो 1x है इन्होंने x लिख लो चाहे 1x लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंता। तीजे नंबर वाला जो 1x है उन्होंने x लिख लिया, प्लस ये बन गया। हूँ आप देख रहे हैं फर्स्ट 2 के कॉमन आता है, इतने एक्स भी पे तो इतने भी एक्स भी पे, मतलब एक्स कॉमन आ सकता है। हूँ जो तो एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स तक गया, एक एक्स बच गया, प्लस इतने एक एक्स सीगा वही चला गया, इसका मतलब कुछ नहीं बचे, जितने कुछ नहीं बचता उत्थे 1 बच जाता। फिर एवं आह उरे इन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं है, जो इन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा लिख दो इन्होंने, क्लीयर है। हूँ आ दोनों के आ दोनों के इक्को जहा की दिख रहा कॉमन अपन की कर सकते हैं। एक तो एक्स जोड़ एक कॉमन है, इधर भी है ये पहले नंबर पर भी है, यदा मतलब एक्स जोड़ एक ये कॉमन आ गया x + 1। हूँ जो इतों आह पूरा x + 1 कॉमन निकल गया तो इतने कला x बच गया, प्लस दूजे नंबर पर कला x + 1 ही सीगा, तो x + 1 कॉमन निकल गया, मतलब कुछ नहीं बचा, जितने कुछ नहीं बचता उत्ते बच जाता 1। तो आ गया अपने को दो फैक्टर x + 1 एंड x + 1 इक्वल्स टू रखना है 0। ये सारा कुछ आप 0 मन के चल रही थी, क्यों 0 मन के चल रही थी, देखो आप जीरोज़ फाइंड कर रहे हैं। जीरोज़ फाइंड करना मतलब कि एक्स की वैल्यूज जिन्होंने पर आना चाहिए 0 आना चाहिए।